नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। बहुत डल मार्केट है। निफ्टी आप देखें करीब 32 अंक नीचे निफ्टी आई थी बिल्कुल फ्लैट। बैंक निफ्टी मात्र 41 अंकों पर। मैं इंडस्ट्री से बातचीत करूंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कार्यक्रम की शुरुआत में विषय को बदल रहा हूं मैं आज। एग्जैक्टली हमारे साथ इस वक्त टाटा स्टील के नंबर्स जो आप सुबह देख रहे थे, जो कि एक सरप्राइज पैकेज था पूरी स्ट्रीट के लिए, उससे बातचीत करेंगे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में। देर में हम निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आएंगे और स्टॉक फ्यूचर्स पे आएंगे। आपने नंबर्स देखा इस बार के लिए, अगर आप देखें करीब करीब कंपनी को 96,600 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले करीब 2500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। खासकर जो इनका यूरोपियन बिजनेस है वहां पे काफी डेंट पड़ा है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टाटा स्टील के एमडी सीईओ श्री टीवी नरेंद्र मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आई थिंक इन नंबर्स को बाजार समझने की चेष्टा कर रहा है। करीब करीब सर 2500 करोड़ रुपए का लॉस इस क्वार्टर में, इसके पीछे कारण क्या है एग्जैक्टली? और स्पेशली आई मीन यूके ऑपरेशंस, उनसे काफी डेंट पड़ा है। एग्जैक्टली इस 2500 करोड़ की जो लॉस थी उसके कारण क्या रहे इस बार? दो चीज है जो which had a big impact on last year's quarterly performance. One is the operational issue, which is more to do with the European performance. क्योंकि आप देखिए तो last quarter the realizations in Europe dropped by about 160 pounds per ton. So that was a significant drop in realization. Cost का भी हम लोग का we had a cost drop in input cost because the coal prices dropped by about $90 per ton. Iron ore dropped by about $20 a ton. पर हम लोग का जो stocks था, we had stocks which were produced in the previous quarter at a very high price. We had to take an NRV loss on that. So that had an impact, and hence the overall cost has increased by about 31 pounds per ton for the quarter. So operationally, you saw Europe going into a negative EBITDA territory for the first time in a long time, right? That is one thing. But the bigger reason of this 2,500 odd crore loss is that we have to de-risk the pension funds in UK. You know, we have a very big pension fund in UK, which we have de-risked over the years. A lot of that is getting transferred to the insurance companies. And when you do that, there is a deferred tax credit which is there. हम लोग का deferred tax credit है, so that gets adjusted. So it's a non-cash loss. It's an adjustment for the deferred tax credit that we've had in our books, and that's why the almost 2,000 crore is because of that. So that's why the numbers are worse than people expected, because this deferred tax credit is a one-off. There is some more left to be done next year. जब हम लोग का ये जो pension fund का जो issue है, once we finally sort it out, there will be some more of these adjustments to be made. But this is largely to de-risk the business. ओके, मतलब आपने, अगर आप देखें, दो मोटे तौर पर कारण बताया इसके यहाँ पर। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करूँ नरेंद्र सर, कि वहाँ स्थिति क्या है, रियलाइजेशंस कितने डिप हुए, और क्या वर्स्ट हमने इस क्वार्टर में देख लिया है कि अभी थोड़ा सा, अगर आप देखें ये डिजिट्स, ये नंबर्स जो हैं वो थोड़े से और वीक हो सकते हैं, स्पेशली फॉर यूरोपियन ऑपरेशंस? No, things will improve. We won't be totally out of the woods yet, but things will improve this quarter. क्योंकि if आप देखिए तो यूरोप में both gas prices and energy prices have started coming down because the winter was not as bad as they feared, and Europe has enough gas stock. So I think that was the build up to the winter. पर अभी हम देख रहे तो दोनों energy prices and gas prices have come down, which is positive for us. Secondly, the steel prices have started going up in Europe. Largely driven by international में जो हो रहा है, because with the opening up of China, steel prices globally have gone up by $100. तो यूरोप में भी हम लोग देख रहे हैं कि almost 50-60 euros का सुधार हुआ है spot prices में. पर on the other side, we have these long-term contracts. उसका renegotiation हुआ है ये साल में. Those are obviously at a lower price than last year's long-term contracts because they were negotiated in January of last year. So we have a plus and a minus. Overall, I expect the performance in Europe to be better this quarter than last quarter, but we will not be fully out of the woods yet. ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेकिन अब अगर आप, मैं भारतीय कारोबार की बात करूँ, इंडियन बिजनेस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका एबिटा पर टन में एक सुधार देखा गया है। मोर और लेस अगर आप देखें, आपको जो लोअर कोकिंग कोल कंजम्पशन कॉस्ट है उसका काफ़ी एडवांटेज मिला। इंडियन ऑपरेशंस आगे जाके आप कैसे देख रहे हैं, और यहाँ पे स्थिति क्या है, विजिबिलिटी क्या कहती है? So I think India business, आप देखिए तो quarter on quarter there is continuous improvement, and that will continue because one is the costs have come down because the July, August, September quarter was the worst quarter in terms of input cost. Coking coal, which we bought in the first quarter, came into our cost in the second quarter. तो आप देखिए तो last quarter में हम लोग को almost $80 reduction in coking coal cost आया है.
ये quarter maybe about $10 reduction in coking coal cost will be there. But more importantly, steel prices in the domestic markets have started going up since December. Steel prices in the international market has also started going up since December, and the export duty which was there was removed in November. So, and finally, the demand in India continues to grow, and with the budget focus on infrastructure, we expect it to be very strong. And last quarter, May we also had this issue of Nilachal, जो हम लोग acquire किया है. We have started the production, but most of the sales will start happening from this quarter. So we'll get the benefit of sales out of Nilachal this quarter. We didn't get that much of a benefit in the last quarter. So in many ways, the India business will continue to improve. ओके बट सर मेरा आखिरी प्रश्न यही होगा कि मतलब अगर मैं एक ब्लेंडेड व्यू लूँ, मतलब ओवरसीज ऑपरेशन, यूरोपियन ऑपरेशन, इंडियन बिजनेस, दोनों को लेकर आगे की अगले 2 क्वार्टर्स की स्थिति आपको कैसी नजर आती है? तो आप ग्लोबल डिमांड देखिए तो द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन हैज फोरकास्टेड दैट शायद 1-2% का ग्रोथ होगा ग्लोबली, but they assumes that China will have 0% growth in steel consumption. अगर चाइना में थोड़ा ज्यादा सुधार हुआ तो that will change. So hence the overall world consumption growth is more dependent on what happens in China. दूसरा बात यह है कि इंडिया में the steel consumption is expected to grow at least 6-7%, which is the rate at which the GDP is expected to grow. पर आप देखिए तो Tata Steel's growth in India has been higher than the consumption growth in India, and that is because we have a very strong franchise, very strong relationships in the market. So our volumes in India will grow based on our production, and globally, if you look at it, the demand is expected to come back this year, simply because there's a little bit more recalibration to the new reality in Europe. आप US में देखिए तो because of the Inflation Reduction Act, a lot of investments are expected to come into the US. China, I think, will recover better than most people think. And some of the other markets like Southeast Asia, Middle East, Africa, etc., continue to be quite strong. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन क्वार्टरली नंबर्स पर आई थिंक स्ट्रीट समझना चाहती थी और सुनना चाहती थी आपको और आपके आगे की क्वार्टर्स के आउटलुक को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी अगर आप देखें प्रश्नों पर बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ मिस्टर टीवी नरेंद्रन इस खास बातचीत में। पोस्ट नंबर टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब करीब ₹4.5 नीचे, इस वक्त करीब 3.25% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। ना अब आइए आप जरा इंडस्ट्रीज पर लौट के, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अगर आप देखें थिन रेंज में, आज सुबह आशीष और मेरी जब बात हो रही थी मॉर्निंग कॉल में मुनाफे की तैयारी में, यही बात हुई थी कि एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर आपके पास बहुत छोटा जोन है, बहुत बड़ा जोन नहीं है आपके पास। 800 ऊपर, 810 ऊपर, नीचे अगर आप देखें 725, 730, अब यकीन मानिए एग्जैक्टली वही हाई है वही लो है। सो फर्स्ट हाफ तो आपका ऐसे ही निकल गया, और मैं फिर कह रहा हूँ इट्स रेंज बाउंड ट्रेड अगर आप कर सकते हैं। स्टिल आई थिंक वो जो हमने लेवल बात की थी 17,725 वही डे लो है, 17,810 वही डे हाई है। डेटा क्या कहता है? बैंक निफ्टी का वही हाई है वही लो है, लेकिन आज स्टेबिलिटी मार्केट में इस लिहाज से है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अगर आप देखें आज स्टेबल हैं। देखिए तेजी मंदी मैं नहीं मानता, लेकिन बड़ी चीज़ है स्टेबल है, कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। आईटी फ्लैट है, बैंक्स फ्लैट है, न डैमेज है, अगर आप देखें तो आई थिंक यहाँ पे कोई अपस्विंग स्ट्रॉन्ग है। एक बार जरा स्टैट्स लिखे आइए शिल्पा राव जी के पास, उसके बाद चलेंगे एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से प्री पॉलिसी बाजार बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस के आंकड़ों को देखें, मैंने 17,800, 900 और 18,000 और 17,700, 600 और 500 के पुट्स को इंक्लूड किया है। डायरेक्टर साहब फटाफट लेके आइए, आई थिंक इसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। ये 800 पे 50 लाख, 900 पे 22 लाख, 18,000 पे 22 लाख, ह्यूज कॉल राइटिंग। अब देखिए तो इंट्राडे में करीब करीब 200 पॉइंट के दायरे में ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। एंड अगर आप 17,700 को देखें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई 80 लाख है, दैट्स ह्यूज है। तो अभी भी रेंज मेरे ख्याल से जो सुबह का व्यू है वो अभी भी परसिस्ट करता है। मेरे पास समय की कमी है और निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपका वही अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज अराउंड 41,271 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अपने 41,500 की कॉल राइटर के नीचे देखिए कॉल राइटिंग 41,500 पे हुई है और पुट राइटिंग 43,300 पे हुई है, तो वही रेंज है। सुबह के आउटलुक एक बार फिर से सुनिएगा, दैट स्टिल परसिस्ट। शिल्पा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या होगी इस वक्त?
जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने भी समझाया वो एकदम परफेक्ट है कि बिकॉज ये रेंज बाउंड है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो निफ्टी का रेंज ऑन इमीडिएट बेसिस इज वेरी क्लोज इन बिटवीन 17,680 टू 17,820, हार्डली अ रेंज ऑफ 150 पॉइंट्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड, लेकिन आपको यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस बाय करना पड़ेगा टुवर्ड्स 41,000 40,700, बिकॉज 40,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो ऑन डिक्लाइंस विद स्टॉप लॉस of 40,500, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड फॉर टारगेट्स ऑफ 43,000 ऑन कमिंग डेज। ओके, निफ्टी बैंक शिल्पा जी। जी निफ्टी बैंक जैसे मैंने बोला कि बेटर प्लेस्ड है देन निफ्टी, आपको ऑन डिक्लाइन स्टिल बाय करना है विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 40,500 फॉर पोजिशनल, और इमीडिएट अगर किसी को करना है तो यहाँ पे 41,130 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है, आपको उसके स्टॉप लॉस से भी आप यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 42,400 से 43,000। ओके, चलिए, मैं स्किप कर गया था आई थिंक आपका व्यू जो है, माफ़ी चाहूँगा शिल्पा जी। अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पे। शिल्पा जी, क्या चीज़ कर रही हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स? जी वीरेंद्र जी, मेरा आज के लिए अभी 2 बाय रहेगा और एक सेल रहेगा। सेल रहेगा मैरिको पे। अगर मैरिको का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 510 एक बहुत ही लॉन्ग टाइम से इसका एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है, तो ऑन इमीडिएट बेसिस आज के लिए मुझे लगता है कि एक 503 का स्टॉप लॉस एंड आपको यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड्स 490 485 मिलेंगे। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को करना है तो 510 एक स्टॉप लॉस आपको, और आप टारगेट्स यहाँ पे 460 का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैरिको, आपका सेकंड कॉल क्या रहेगा आज के लिए? जी मेरा सेकंड कॉल रहेगा बाय ऑन कॉनकॉर। कॉनकॉर अभी 617 के ऊपर अभी डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, जो इसका एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो अभी के लिए टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 617 ऑन फ्यूचर्स, अभी ट्रेड कर रहा है 622 समथिंग पे, तो आई एम लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 645। ओके, कॉनकॉर यहाँ पर 645 तक का स्विंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा कॉनकॉर, मतलब मैं शिल्पा जी के अगर ट्रेड्स की थीम को समझूँ ना तो 621, ये प्योरली एक पुल बैक ट्रेड से फोकस कर रही हैं। याद रखिएगा कल कॉनकॉर ने एक पॉज दिया था, और जो आई थिंक जो उसकी फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री थी उससे एक पॉज दिया। स्टिल याद रखिएगा अभी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी करीब करीब आप समझ लीजिए ये अभी 12 रुपये दूर है। सो पुल बैक राइट कर रही हैं यहाँ पर। और एक बार मैरिको लेके आइए। मैरिको का मेरा चार्ट आई थिंक उस वक्त ओपन नहीं हो रहा था एट 496, ये अभी भी एक रेंज में है, अभी भी सारे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है 496 पे। अच्छा शिल्पा जी, आपका थर्ड ट्रेड, आपका कन्विक्शन कॉल? जी मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 4340, तो अभी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4300 का, और टारगेट्स 4420 एंड 4460। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पर आप देखें आपका एक लॉन्ग व्यू है, और अपोलो कल से इस स्टॉक में एक जो मूव है वो शुरू हुआ था एट 4334। क्या कर रहा है ये? याद रखिएगा आज इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, और ये 20 डे को क्रॉस करने का आई थिंक जो ये बिहेवियर है इसने 29 दिसंबर के बाद, यानी मोटा मोटी लगभग 1.5 महीने के बाद एस्टेब्लिश किया है। अभी भी लगभग समझ लीजिएगा कि आप 43-59 पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बट बिहेवियर ठीक ठाक है। शिल्पा जी के तीनों ट्रेड्स की प्रॉपर्टी है पुल बैक। ऐसा कोई स्टॉक नहीं लिया जो कि मिड वे में है या फिर ऑल टाइम हाई पे, नो, सिर्फ पुल बैक को राइट कर रही हैं। दैट्स गुड। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होता है। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था।
262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी के बारे में। दरअसल डोमिनोज आज हमारा टॉपिक है और डोमिनोज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में टॉम और जेम्स मोनेगन के नाम से के जो दो भाई थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और दरअसल उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदने के बाद इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम जो था वो डोमिनिक था, लेकिन बाद में एक डिलीवरी पार्टनर के कहने पर उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और डोमिनोज के तौर पे इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दो पार्टनर थे टॉम और जेम्स, उनमें से 8 महीने के बाद ही जेम्स साहब ने अपना एक कारोबार या अपने कारोबार का हिस्सा जो है वो एक ओल्ड या पुरानी फोक्सवैगन बीटल के बदले में टॉम साहब को बेच दिया, क्योंकि वो अपने बाकी कारोबार पे जो कि वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उसके अंदर फोकस करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो रेस्टोरेंट कारोबार में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए टॉम साहब को उन्होंने पूरी कंपनी का अपना हिस्सा बेच दिया और आप उसके बाद देखिए टॉम साहब ने किस तरह से इस कारोबार को इतना बड़ा किया है। 30 साल तक डोमिनोज महज दो साइजेस के पिज्जाज को डिलीवर करता था, जिसमें 11 टॉपिंग और उसके अलावा एक सॉफ्ट ड्रिंक कोला कंपनी ऑफर करती रही है। ये 30 साल तक का हिस्सा रहा, लेकिन विद टाइम कंपनी ने एक बड़ा इवोल्यूशन दिया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, कंपनी पहले दिन से ही सिर्फ डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि जो कंपनी की शुरुआती रेस्टोरेंट थे वहां पर बैठने की इतनी जगह नहीं होती, तो उन्होंने कहा चलो डिलीवरी से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके कंपनी का कोर कारोबार ही अब डिलीवरी के तौर पर बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। और कंपनी के लोगों में आपने अक्सर 3 डॉट्स देखे होंगे। दरअसल वो 3 डॉट जो थे वो कंपनी के पहले 3 रेस्टोरेंट को सिंबलाइज करते हैं। हालांकि कंपनी के स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से, और चलते हैं अब सीधे शिल्पा जी के पास आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। शिल्पा जी बताइए आप एग्जैक्टली क्या पिक कर रही हैं ऑप्शंस में?
जी वीरेंद्र जी, अभी के लिए मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा एम्फेसिस में। आईटी आज थोड़ा मिक्स्ड बैग में है, बट एम्फेसिस अगर मैं देखूँ तो परफॉर्मेंस इसमें बहुत अपसाइड का इसमें स्कोप है। इट हैज़ नॉट परफॉर्म एज मच अदर्स काउंटर्स हैव डन। तो आई एम अगेन टेकिंग अ बेट कि ये सोच के कि होपिंग with the data setup that Mphasis is having a strong support at 2080 zones. तो अभी यहाँ से I'm looking at targets towards 2300. तो मेरा जो सस्ता ऑप्शन रहेगा वो रहेगा Mphasis का 2200 कॉल ऑप्शन, रफली ट्रेडिंग एट अराउंड 30 to 35 रुपीज़ राइट ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 15 का लगाना है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इजीली डबल में आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा अबव 70। तो दैट इज़ माई सस्ता ऑप्शन। ओके, एम्फेसिस की 2200 की कॉल आपको लेनी है @31.90 पे ट्रेड करते हुए। और निफ्टी आईटी अभी अगर आप देखें ड्रॉप हुआ है थोड़ा सा। निफ्टी आईटी लगभग शिल्पा जी के बात करते करते हम 100 पॉइंट लूज़ हुआ था, और उसी के चलते निफ्टी अगर आप देखें लगभग 17,700 के जोन को छुआ आया। निफ्टी बैंक निफ्टी वहीं पर ही है, बट यस निफ्टी आईटी करीब 52 अंक का है। बट स्टिल अगर आप देखें विद इन दैट रेंज। मिड कैप के लॉसेस कितने हैं? मिड कैप का लॉस जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, हार्डली 70 पॉइंट्स। तो बहुत थिन रेंज में वेटिंग फॉर एन इवेंट, पॉलिसी पे ध्यान देता हुआ शायद बाजार। एक बार डाउ फ्यूचर्स जरूर देखते हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, फिर इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आएंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स कोई बहुत निर्णायक नहीं है, मात्र 10 अंक ऊपर। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अगली मुलाकात होगी आज से आज आपसे कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए